Innings here. We are in the chase call now. The two openers are out in the middle here. Ishtiaq Nag will face the first ball, and that was well pitched outside the leg stump. He tried to go for a first Yorker delivery, but that has been missed the line absolutely. But it was a good fielding behind the wickets, and there is no run. So finally, we are coming back live on Kashmir Supports Watch. And this is Shafi Para giving you the live coverage from SNW Memorial Ground on Kashmir Supports Watch. A wonderful atmosphere is already in the ground here, and we are coming here in the second innings. 28 comes. Oh, Ishtiaq Nag starts his style. A typical Ishtiaq Nag sends the ball outside it's one bounce into the fence for four. Well, he's one of the destructive batsmen, Ishtiaq Nag. He's a kind of a batsman. He's snatching the game away from the opponents. Oh, all the Shaukat Blues, Bijbara, they have to pull out all the stops here if they want to win the game. And Aqib Nabi is not playing in this squad today. And coming back live from SNW Memorial Ground, this is a wonderful batsman, Ishtiaq Nag. Will go to face another ball here. Oh, that's a perfect length where you can have some sort of chances to beat the batsman. And in fact, Ishtiaq Nag is a kind of a batsman on the pads. You cannot bowl to him. You cannot offer much more width to him, because talking about the strength of Ishtiaq Nag, he is such a blazing batsman through scare of the wicket, especially through backward up point. His uppercut is signature shot through that side. Long on, mid wicket. These are the areas where you cannot control Ishtiaq Nag if he will bowl a wrong line. Meanwhile, Imtiaz comes once more in this over. That is shot. Catch is the call here. Left side. That could be the big wicket. There is not a good position that I have witnessed it early. Run out chance. There he goes, and is not out. Oh, there is composition of dramas, emotions here. Ishtiaq Nag is a kind of a batsman. Nobody wants to drop him. Every bowler is having a dream to get him out. Oh dear, he has missed a big catch here. It should have been taken. The problem with the fielder was he should have made his good position there. But anyways, not to think much about it. Go for further proceedings here. We are in the over number first, chasing down the target of 184 runs here at the SNW Memorial Ground. We are in the chase call here. It is France Motors Normal with two openers already at the middle here. Ishtiaq Nag has already faced a fantastic shot, and he has gone for some big shots. Ball comes in, right arm over the stumps. Oh, this is typical Ishtiaq. That is what I was talking about. Bangs the ball through the offside. Two bounces into the ropes for four. And this is going to be a trouble for the opponents here. You cannot give much more width to Ishtiaq Nag. He is on fire. He has started the intentions why Ishtiaq Nag has been actually sent there. And this is exactly what he did in the last Boom Boom Cup here, organized by Wasim Nisar. And this is absolutely fantastic. Malik Faizan, thank you. Imtiaz Loon, thank you. Once again, bowler is back drive in the follow through. Good fielding by the Imtiaz as a bowler there, and there is no run. 184 is the target here, and it's a jam packed through the boundaries of the onside, because there is huge fan following of Ishtiaq Nag. He's a kind of a batsman where he faces 15 to 20 balls, he will go for surely for big knock here. And it was wide outside the off stump. Much more elevation from the ball. Further elevation there, and well taken behind the wickets. And there is a white ball signal by umpire Ejaz here. The two best umpires of the tournament here. It's Ejaz and Mehraj. Here comes Imtiaz. Have a look on the fielding. Two slips in position. Short point. Cover. Mid off. This is offside fielding. Oh, that's a good line. That's a perfect line. You have to hit the proper deck there. And this was a wonderful piece of bowling there. Well taken behind the wickets. Imtiaz is coming back, although he bowled some bad deliveries. And there is no run. 184 is the target here for France Motors Normal.
Ishtiaq Nag and Omar are at the crease. Ishtiaq Nag will face the another ball of Imtiaz. Imtiaz comes in, right arm over the stumps. Ball is to Nag. Now comes down the track and distraction on the pass. Big appeal. He has missed it. No, that should be not out, I guess, because the batsman has exposed all the stumps there, and that's why he was given not out. Ishtiaq Nag is looking in good touch now. Partnership throw. It is 13 on the board after the end of first over here. The required run rate is 9 runs in an over and the current run rate is 13 runs. We are going to go into the second over now. Friends Motors Narwhal. It is 171 runs now needed on 114 balls. Thank you so much, dear viewers on the Kashmir Sports Watch. Kindly, from my all chambers of heart, I request you humbly and to share this page much more so that we will be connected with much more people across the globe here. So second over going to be operated now. Let's have a look on the fielding. Apart from the first slip, we have a second slip in place. We have a deep third man, short point, short cover, mid off, 5 fielders on the offside and 2 fielders just at the little difference, mid on, short mid wicket and fine leg is in the deep here. Oh, that was a fuller one, beautifully bowled, trying to go for a Yorker one, and full toss delivery is a kind of a ball you can hit it to any part of the ground. It's a juicy one, but if you will miss it, it could be a terrible one. Ishtiaq Rasool is Shah Sam's neighbor. Maharaj Malik, thank you. Thank you so much, Shafipara. And this is what Omar Wani is saying there. And we have a lot of allowed to Dr. Omar. We are missing him. He is in Bangladesh and pursuing the degree of MBBS. Oh, once again, couldn't time it well. Goes there for a big one. There's a big fumble. Fielding should be tight. You have no scopes here for errors. Don't be much more floppy. It's one more to the addition now. Score moves up to now 14 for without any loss, and we are in over number second here. The required run rate is 9.11 now. Ishtiaq Rasool has faced 7 balls, 2 boundaries, and he has yet to get a 6. He has scored 10 runs. Beautiful. He is watching from Wadlab, Sopor, Maharaj Malik. Thank you so much. I think every time it is because of you people I have received love, affection and honor. It is really a great privilege to be here. Comes and bowls him shorter one, pulled away. You cannot bowl this length to this man. What a piece of fielding. You can't have better fielding than this one. Acrobatic stop, scintillating at the deep mid-wicket fence. He saved 3 runs. And what a piece of fielding. I was absolutely here in a kind of euphoria to watch such a fantastic fielding there. This is the kind of fielding you need to restrict the opponents to not leak much more runs here. Anyways, score goes up to now 15 and we are in over number second here. Now Ishtiaq Rasool is at the non-striker's end. Omar is ready to face short pitch bouncer. That should be wide. Let's have a look on it. Umpire Ejaz is having no issues on it and it's a wide ball signaled. And Abid Maqbool, thank you. Atawala, thank you. Dr. Atawala now because he has pursued a PhD degree. And thank you both of you, manual scorers and our digital scorers for being live here. Thank you all the Tariq Saab, Irshad Saab, Mehraj Saab, Abdul Rakib, Irfan, everyone. Thank you so much. Meanwhile, ball comes right arm over the stumps. One slip in position now. Oh, miscued it. Terrible line there. Beautifully bowled on the short pitch. He tried to go for a big one. It was a bit rising there. And watching from Nagaland, Turabi Shafu, thank you. Mir Ishfaq, thank you. And sometimes I miss some comments on the social media. Turabi, we have a lot of love to you and to Nagaland as well. Hami Hamad, ye kahan chal raha hai bhai? Ye bhai Patan mein chal raha hai, SNW Memorial Ground. The bowler goes to the top of his bowling mark. Yunus Butt, he has bowled 4 deliveries in this over. Oh, that's a beauty. Oh my God, that's really close. That is still deadly close. And there's a fumble at the end. He went out to splash by his left foot, misses it. And that has brought Ishtiaq Nag on the strike now. One more to the addition now. Score goes up to now 16. Over number second is in progress here.
Friends Motors Narbal, Wa MPRE. Thank you so much. Omar Ilai, JCC sa Bala ka match ka I don't have here information about the fixtures. Gumnam, thank you. And convey my salam to Arab and our shrine. खाने काबा को मेरी तरफ से सलाम भेजना. Thank you so much. Ball goes to the top of his bowling mark. He will be bowling last time in this over. One is Zubair, thank you. Ishtiaq Nag is a very dangerous batsman. Absolutely raw. Comes right over the stumps from the Willie side end. Oh, that was a bag of a leg. Oh my dear. Oh dear. That is all the way. That's outside the long off hands for a 6. Ishtiaq Nag is started a blazing cameo here. The show has been started. A typical Ishtiaq Nag has sent the ball over the top of the long on. It's all the way for a 6 here. Score moves up to now 23. That marks the end of second over now. The current run rate is 11.5 and the required run rate is 8.94. Always man. Who's it? ये बात से बात करे जल्दी शेयर किस पेज है ठीक है and dear friends kindly share this page. Who will become the winners of this match? आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो क्या ये मैच फ्रेंड्स मोटर्स नार्मल चेज कर पाएगी 184 रन्स और आप ये भी बता सकते हैं कि इस मैच को कौन जीत सकता है और आप ये भी बता सकते हैं आज के मैन ऑफ द मैच कौन हो सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों के लिए. आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो सवाल देने में जवाब उन्होंने जो दिया है वो कामयाब हुई है उसका बहुत बहुत शुक्रिया. Meanwhile bowler Imtiaz goes to the top of his bowling mark. One slip in position. Big cordon through the offside. This was a Mulli Gruber type of a ball. Run out shy at the non-striker's end. But there was a big fumble by the fielder at the silly point. And there is one more to the addition now. Score goes up to now 24 without any loss. Ishtiaq Rasool. Ishtiaq Rasool has faced 9 balls. Ishtiaq faced 9 balls in fact, and he has scored 17 runs with 2 boundaries and a 6. Bowler comes Imtiaz, right arm over the stumps. There is protection in the deep mid wicket and long on. Oh, Ishtiaq wants to lift the ball over the long off, and there is no run there. It was absolutely miscued by Ishtiaq. And Ishtiaq is having a kind of a Virender Sehwag type of a style. He's every time charging the bowlers. Bowler goes to the top of his bowling mark now. It's a big cordon through the offside. We have now 2 slips in place. Backward a point, cover, mid off in place there. This is offside fielding, shorter in length, and this was nipping down the leg side. Umpire Ejaz has no issues in declaring it a wide. White ball has been declared. Watching from Sunmarg, one of the beautiful places of the world in Kashmir. Lucky, thank you. Sohail Hassan, thank you. And until Ishtiaq Nag is there, everything is possible. Cricket is game of uncertainties. You never know what is going to happen on the very next ball. Meanwhile, Ishtiaq Nag is ready to face another ball from Imtiaz. Comes in, balls. Oh, that was a short pitch delivery once again on rising. And Ishtiaq Nag is actually having a typical style to create a room and to burst circuit over the backward of point and sweeper cover. These are the 3 places to the offside. He can slap you anytime, any day. So bowler has to be very much vigilant, very much hawk-eyed. Thank you Oweswani for watching the match, and thank you everyone. Yunus Sheikh, thank you. Abu Ayan, thank you very much. Meanwhile, bowler comes in, right arm of the stumps. Oh, he goes for a big one. That has been slammed all the way. Fielder underneath it, and he has taken a catch. Oh, for a while it looked like that the ball will go outside the fence. It has taken much more height instead of distance here. And finally a catch has been taken. Big wicket gone. Ishtiaq Nag has been sent back to the dugout now. There is excitement in the team of Shaukat Blues Bijbihara now. They are coming back in the game now because Ishtiaq Nag is a kind of a batsman. He can snatch away victory from your jaws anytime. So he has been sent back to the dugout. Another batsman walks down the middle there. And let's wait. Ishtiaq Nag, 17 runs, 12 balls, 2 boundaries, 1 6, 141.67 was his strike rate.
सो डियर फैंस, काफ़ी निराश आप ज़रूर होंगे। काफ़ी निराश होंगे फैंस यहाँ पर तो क्योंकि इश्तियाक नाग के काफ़ी बड़े फैंस है पूरी वैली में पूरी वादी में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का जो इस वक्त देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आज का मैच कौन जीतेगा, आज की मैन ऑफ द मैच कौन बन सकती है, ये आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो। फ्रंट्स मोटर्स नारबल के पास अभी जहांगीर लोन का आना बाकी है, ज़ुहर जोलो का आना बाकी है, लेकिन जो शौकत ब्लूज बिजबियारा ने आज खेल का मुजाहरा किया है पहले इनिंग्स में, मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त आला दर्जे का खेल उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। और मेरे साथ जुड़े हैं अशफाक कीतू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुहूर लोला भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोलाब वादी जो है कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत वादी है। सोहेल पहलगाम बिजबियारा से देख रहे हैं, वॉचिंग फ्रॉम फ्रीसल बिजबियारा। सोहेल आपका बहुत शुक्रिया। राकिब वानी भी देख रहे हैं बानियाल से, बानियाल जिसको हम बोलते हैं कि एक ये गेटवे है कश्मीर के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो स्लिप्स यहाँ पर लगाई गई है। कैमरामैन अगर मुझे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आया उनके लिए 2 स्लिप्स के अलावा बैक पॉइंट। पहले गेंद पे यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने इशारा दिखाया कि उनका जो इंटेंशन है वो क्या है। 2 टपका खाने के बाद गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इश्तियाक नाग के बाद यहाँ पर जो बल्लेबाज आए हैं वो बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है इरफान लारा, और बिल्कुल लारा की तरफ यहाँ पर स्टाइल जो उनकी है शुरुआत की है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। पहली गेंद का सामना किया और गेंद को भेज दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। वहां पर आप प्रोटेक्शन रखी गई है और अभी पावर प्ले चल रहा है। तो श्रोताओं को बताना चाहेंगे ये मैच जो है शौकत ब्लूज बिजबियारा उनका यहाँ पर मैच है फ्रंट्स मोटर्स नारबल के साथ। 2 कदम आगे आए थे, क्रीज को छोड़ा था और वहां पर बल्लेबाज जो है वो इस समय से सफल नहीं हुई गेंद को खेलने में, और किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 29 और 3 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। 9.67 की औसत से इस वक्त रन बन रही है, और जो पूछने वाली रन रेट है जिसको हम रिक्वायर्ड रन रेट बोलते हैं वो 9.12 की औसत से रन बनाने होंगे। कैमरामैन अब्दुल रकीब, बाकी जो मेरे साथ इरफान है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, रफ़ीक जो है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को ये बताएंगे कि ये जो मैच है ये SNW मेमोरियल ग्राउंड में इस वक्त चल रहा है, बहुत बड़ा मैच है। इश्तियाक रसूल ने 17 रन बनाई है, और इश्तियाक की अगर बात करेंगे तो उन्होंने 2 चौके 1 छक्का लगाया। बहुत ज़बरदस्त आक्रामक मूड में लग रहे थे इश्तियाक नाग, लेकिन उनका विकेट आउट हो चुका है। वो इस वक्त पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। बहरहाल अगले गेंदबाज आए हैं इम्तियाज़, जो है उनने 2 ओवर किए, कोई मिड नहीं, 19 रन 1 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर, बहुत ही ज़रूरी विकेट उन्होंने लिया है इश्तियाक नाग का। उसके बाद आए यूनुस बट, 1 ओवर कोई मिड नहीं और 9 रन दिया है। एक बार फिर चले गेंदबाज, नो बॉल सिग्नल वहां पर दिया है अंपायर महराज ने, और यहाँ पर फ्री हिट मिलेगी फ्रंट्स मोटर्स नारबल को। सिंहपुरा से कुछ लोग मैच देख रहे हैं। मोहम्मद साहिल बहुत बहुत शुक्रिया, आकिब जैदी बहुत बहुत शुक्रिया, करगिल से, करगिल बहुत ही खूबसूरत जगह है, और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहिल आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर चले बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे, शॉर्ट गेंद थी, वहां पर आगे जाके इस गेंद को उठाना चाहते थे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की जानिब, लेकिन बल्ले और बॉल के बीच कोई वहां पर मुलाकात नहीं, गेंद चली गई यहाँ पर बल्लेबाज के पीछे जो विकेट कीपर है उनके हाथों, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। रमीज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अकबर जैदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो गेंदबाजी कर रहे हैं यूनिस ने अभी तक जो है गेंदबाजी की है वो है 1 ओवर अभी तक ऑलरेडी उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने उस ओवर में 9 रन दिए थे। उनका ये दूसरा ओवर है और इनिंग्स का ये चौथा ओवर चल रहा है। चले अंपायर को क्रॉस किया, फुलर गेंद डाली थी, बहुत अच्छी यहाँ पर विकेट कीपिंग की है, और विकेट कीपर जो है यकीनी तौर पर उन्होंने ये चौका बचाया। फुल लेंथ गेंद डाली थी इस वक्त और किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। वो है वानी आपका शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा नहीं रोएंगे। और हैदर जहांगीर लून नहीं, अभी जहांगीर लून का आना बाकी है। मलिक हैदर शुक्रिया, माही इशफाक शुक्रिया। बस सिर्फ एक मोदबाना गुजारिश है कि आप हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोग जुड़े जाएंगे हमारे साथ, और आपको हम लाइव प्रसारण दिखाएंगे यहाँ पर चंद्रमा के SNW मेमोरियल ग्राउंड से।
शौकत बलूज की जो बॉडी लैंग्वेज है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि काफ़ी अच्छा कमबैक किया है इस टीम ने। क्योंकि इश्तियाक नाग का जो विकेट है एक ऐसा विकेट है जहां पर आपको बहुत परेशानी होती है, बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं इश्तियाक नाग, लेकिन जब से उनका विकेट आउट हुआ है रन रेट जो है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि करंट रन रेट जो है वो 8.57 है। एक बार फिर फ्लिक किया खूबसूरत अंदाज में, पैड्स पे गेंद डाली, गेंद चली गई वहां पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। आउटफील्ड वहां पर काफी ज्यादा तेज था और सिर्फ गेंद को वहां पर बल्ले का किनारा दिखाया और गेंद चली गई खूबसूरत लपक झपक के बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 34 और एक विकेट आउट हो चुका है। आउट, स्विच ऑफ रकीब, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार दिशा से बढ़ के एक बार फिर उठाना चाहते थे, वहां पर शॉर्ट राइजिंग गेंद थी, अच्छी विकेट कीपिंग एक बार फिर खालिद नज़ीर के जानिब और किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। तो इस ओवर के बाद जो है इनिंग्स का वो 5वां ओवर होगा। पावर प्ले जो है 6 ओवर पे मुश्तमिल होता है। तो अच्छी ताबड़तोड़ शुरुआत की है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल ने यहाँ पर। अभी भी जहांगीर उनका बाकी आना है, ज़ुहूर जोलो एक बड़े बड़े खिलाड़ी है। तो इस वक्त चले हैं गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे, इस गेंद को उठा दिया, यहाँ पर लीडिंग एज लग गया, बदकिस्मत है यहाँ पर गेंदबाज, गेंद चली गई यहाँ पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस गेंद की रफ्तार जो थी वो मुझे लगता है कि 142 की रफ्तार से ये गेंद डाली थी, जिसकी वजह से वहां पर जो बल्लेबाज है वो बड़े शॉट के लिए गए थे। लगातार 2-3 बार जो इस शॉट की कोशिश की थी, लेकिन एक बार फिर कामयाब हुए इस वक्त इस ग्राउंड में इस शॉट को खेलते हुए। लेकिन हालांकि एक जिसको हम कहते हैं कि मिडिल बैट से इस शॉट को नहीं खेला है, लेकिन फाइनली एक टॉप एज लगा, गेंद चलेगी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो बहरहाल स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 40। 4 ओवर के इख्तिताम के बाद एक विकेट आउट हो चुका है, 144 रन यहाँ पर बाकी बनाने हैं। बाकी जो है जो दर्शकों को यहाँ पर बताएंगे कि आज हमने आपको सवाल पूछा था कि आज का जो लक्ष्य है क्या इसको चेज करने में कामयाब हो जाएगी फ्रेंड्स मोटर्स नारबल या नहीं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए यहाँ पर अब जो कि लारा के नाम से जाने जाते हैं, लारा के लिए 2 स्लिप्स के अलावा एक डीप गली रखी गई है, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्डिंग। ऑन साइड की अगर बात करेंगे तो डीप फाइन लेग प्रोटेक्शन रखी गई है वहां पर, और शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी और मिड ऑन पे एक खिलाड़ी मौजूद है। यह है ऑन साइड की फील्डिंग। बॉलर चले राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद डाली थी लेकिन इस गेंद को उठाना चाहते थे, एक बार फिर थोड़ी सी खराब फील्डिंग वहां पर, लेकिन पूरा भरपूर फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मुकम्मल किया, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज है इश्तियाक रसूल, जिन्होंने आज 17 रन बनाए, 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से। बहरहाल फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम ऐसी है जो कि बहुत बड़ी टीम है, जिन्होंने हाल में यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है कप जीता है, वो है बूम बूम का कप, जिसको वसीम निसार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट था, अच्छी ग्रैंड सक्सेस हुई टूर्नामेंट की। अब जो जब कभी भी होती है लेफ्ट राइट हैंड इन कॉम्बिनेशन, तो यकीनी तौर पे थोड़ा सा जो है प्रेशर बॉलर पे भी आता है, क्योंकि आपको लाइन चेंज करनी है, आपको फील्डर चेंज करने पड़ते हैं। तो एक बार फिर चले, पैडू पे गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, तो इसी वजह से वहाँ पर आकर मैं जो गेंदबाज से वहाँ पर ज़्यादा अपील नहीं की, तो 1 रन के लिए गए थे वहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद डाली थी। विकेट कीपर की अगर बात करेंगे तो अभी तक अच्छी विकेट कीपिंग की है विकेट कीपर खालिद ने। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होती है तो बार बार फील्डिंग उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आपके जो पॉइंट फील्डर है, स्लिप्स है, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर फील्डर है, ये 3 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो लगातार फील्डिंग रखी जाती है लारा के लिए। तो लारा के लिए वही फील्डिंग में कोई तब्दीली नहीं। अब अराउंड द विकेट गेंदबाजी, एज लग गया था यहाँ पर, लेकिन गेंद जो है 2 मीटर पहले नीचे गिरी थी यहाँ पर आदि से, और किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। लेकिन जरूर ये बताना चाहूंगे कि राउंड द विकेट जो फैसला लिया था इस वक्त गेंदबाज ने, तो मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है और विकेट लेने की तलाश में है, क्योंकि अभी तक 1 विकेट आउट हुआ। और एक बार फिर
शॉर्ट राइजिंग डिलीवरी थी, इसको धकेल दिया, लेकिन वहां पर पॉइंट पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने इसको फील्ड किया, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पे इनिंग्स का ये 5वां ओवर चल रहा है। शायकीनों को बताना चाहेंगे कि 184 का लक्ष्य दिया है यहाँ पर, और बहुत ही जबरदस्त शॉट खेलता है, शॉर्ट राइजिंग डिलीवरी, और छोटी गेंद आप लारा को इस तरह नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्वीपर कवर है, डीप पॉइंट है, वो ऑलरेडी 30 गज सर्कल के अंदर है, और गेंद को इस बार धकेल दिया है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। 2 टपका खाने के बाद 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45, 1 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर लारा ने उठा दिया है, कैच आउट होने का खतरा, यहां पर बहुत बड़ा विकेट हो सकता है, और आसानी के साथ विकेट ले लिया यहां पर इस तरह से, और 1 विकेट गिरता हुआ लारा की इनिंग्स का खात्मा कर दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो गेंदबाज है उन्होंने जो शुरुआत की थी ओवर की राइट आर्म राउंड द विकेट्स, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि जो गेंद को अंदर लाते थे, शॉट करते थे, यकीनी तौर पर इससे पहले खराब गेंद डाली थी, लेकिन इस बार गेंद जो है सही निशाने पे डाली। बल्लेबाज चाह रहे थे कि एक बार फिर इसको धकेल देंगे वहां पर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, लेकिन हालांकि स्वीपर कवर की जानब खेलना चाहते थे, गेंद जो है इस वक्त बल्ले पे लग गई थी, लेकिन जो शॉट की टाइमिंग है और प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं थी, फील्डर ने वहां पर आसानी के साथ कैच कर दिया, और इस तरह से और 1 विकेट गिर गया। अभी भी जहांगीर उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर दर्शक, काफी ज्यादा दर्शक आए हैं यहाँ पर मैच को देखने के लिए, तो काफ़ी बड़ा मैच है, काफ़ी एक बड़ा टूर्नामेंट भी है। अगर टूर्नामेंट की बात करेंगे तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो अभी तक जो है दोनों टीमें हैं अभी अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा किया है। अभी दोनों खिलाड़ी जो है इश्तियाक नाग जिन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो इशफाक यूसुफ चंद्रामा में ये मैच खेला जा रहा है SNW मेमोरियल ग्राउंड में। तो इस तरह से स्कोर जो है वो है 184 रन का पीछा करते हुए 46 रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पे, 5 ओवर्स का खेल अभी तक हो चुका है। दर्शक बता सकते हैं कि आज के विनर्स कौन हो सकती है, आज का मैन ऑफ द मैच कौन बन सकता है। अभी भी जहांगीर उनका आना बाकी है, और हम यहाँ पर आपको कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे लाइव मैच दे रहे हैं, और सभी लोगों का जो इस वक्त मैच देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो कि आज का मैच कौन जीतेगा और आज के मैन ऑफ द मैच कौन बन सकते हैं। ये आज है आज की जो SNW मेमोरियल ग्राउंड से अगला मैच यहाँ पर जो चल रहा है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त। अगर फील्डिंग की बात करेंगे इस नए बल्लेबाज के लिए, तो जो फील्डिंग है एक स्लिप्स के अलावा शॉर्ट गली रखी गई है, बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी मौजूद है, शॉर्ट कवर पे एक खिलाड़ी मौजूद है, और मिड ऑफ पे एक खिलाड़ी, 1 2 5 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में। ऑन साइड की अगर बात करेंगे तो यकीनी तौर पे प्रोटेक्शन है, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है, और फाइन लेग को 30 गज सर्कल के अंदर लाया गया है। मोहम्मद प्रिंस साहब का बहुत शुक्रिया, मोहम्मद आदिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बॉलर चले सुकुर वाले छोर से, इस गेंद को उठा दिया, थप्पड़ मार दिया गेंद को सीधे वहां पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट, शौकत सपोर्ट्स बिजबाड़ा 184 का लक्ष्य दिया है यहाँ पर फ्रंट्स मोटर्स नारबल को। आज के मैन ऑफ द मैच कौन बन सकते हैं, और आज के जो विनर्स है, आज के विजेता कौन टीम बन सकती है, इस बारे में यहाँ पर आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 52। एक बार फिर उठा दिया है आज के दिन का सबसे बड़ा छक्का, 123 मीटर का छक्का, बहुत ही बड़ा छक्का वहां पर काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बैक टू बैक सिक्सेस इस ओवर में, जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस वक्त चल रही है। आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार है। लोन शायद बहुत शुक्रिया। मलिक मुंता नाग ने बैटिंग की, मलिक बिल्कुल नाग ने 17 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौके और 7 गेंदों का सामना किया। उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन फरजान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत टीम में किसने ज्यादा स्कोर किया? शकील ने 49 रन बनाए और नॉट आउट रहे, और इश्तियाक ने 47 रन बनाए बहरहाल, और बेंजी ने भी बहुत अच्छे शॉट्स खेले जिन्होंने 17 गेंदों में 31 रन बनाए। मोहम्मद आदिल बता रहे कि आज के मैन ऑफ द मैच जहांगीर लोन बन सकते हैं। 184 का पीछा करते हुए यहाँ पर फ्रंट्स मोटर्स नारबल ने जबरदस्त अभी तक जो है शुरुआत दी है अपने टीम को। हालांकि जो ओपनर है इश्तियाक रुआब, उनको वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया गया है। हैदर जहांगीर लोन
अभी नहीं खेलने के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वसीम काशू आज नहीं है, आदिल रशीद भी नहीं है, आकिब भी नहीं है और जद्दू भी नहीं है आज। और पहले ही वहां पर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, यकीनी तौर पे एक चौका बचा दिया, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे वहां पर बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52, 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर खत्म हो चुके, छठा ओवर चल रहा है। 60 रन बन चुके हैं क्योंकि 2 छक्के लगे थे, माफ कीजिएगा दर्शक, और 60 जो है 60 रन बन चुके हैं बोर्ड पे 184 रन का पीछा करते हुए। काफी महंगा ओवर है ये इम्तियाज की तरफ से। अपने बॉलिंग निशाने पे एक बार फिर उनका सामना यहाँ पर कर रही है बल्लेबाज, और उनके लिए बिल्कुल यहाँ पर जबरदस्त कॉर्डन रखा गया है। बहुत खराब गेंद डाले थे, दिशा से बट गए, फाइन लेग 30 गज सर्कल से अंदर थे और गेंद चली गई लपक झपकते सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। हैदर, अगर आप सवाल मुझसे पूछे डीएल मेथड का, तो यकीनी तौर पे जो 2020 फॉर्मेट में जो इंटरनेशनल रूल्स फॉलो किए जाते हैं तो यकीनी तौर पे वो रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो अभी तक देखना होगा, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है कि डीएल मेथड में कौन जीतेगा, लेकिन ये खराब गेंद थी और सीमा रेखा से बाहर, स्कोर बढ़ता हुआ 64 और ये इनिंग्स का ये छठा ओवर चल रहा है। काफी खराब ओवर, ये काफी इसमें रन आए अभी तक। एक बार फिर अच्छी गेंद डाली थी और थोड़ा सा जो है निशाना बदल दिया बल्ले वहां पर जो गेंदबाज थे और सही निशाने पे। और अभी आपको बताऊंगा कि किसने कितने रन किए। 19 मकबूल, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारी इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको हम भरपूर एंटरटेनमेंट देंगे इस ग्राउंड से। और मोहम्मद आदिल शफीपरा फ्रॉम चंद्रामा SNW ग्राउंड, and we are here in the second innings here. Chase is the call for Friends Motors Narbal. They have lost a couple of wickets and they are charging down to, once again shot, catch is the call, beautifully fielded, almost missed a catch there, and this fielder has been in the show today. He is not allowing the boundaries from that side. Absolutely fantastic fielding, and he has saved a boundary there, but he can't stop the batsman from taking a run there. One more to the addition now after the end of power play here. It is, have a look on the scoreboard. Yeah, Nayur. हमको तो कुर बल्लेबाज का नाम जरूर आपको बताएंगे। तो चूंकि मैं 2-3 दिन से लगातार कमेंट्री कर रहा हूं तो थोड़ा सा थका हुआ हूं, और जो एक स्पेशल उर्दू कमेंटेटर की हमें यहाँ पर जो है ज़रूरत हमेशा से होती है, तो शमीम साहब भी हमें साथ दे रहे हैं, तो उनका भी बिजी शेड्यूल रहता है हमेशा से। तो जितने भी दर्शक हैं, एक तो वो मैच को एंजॉय भी कर रहे हैं और अपना ये रिक्रिएशनल टाइम उनका होता है। और वहाँ पर अच्छी गेंद डाली थी क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट पे फील्डर है उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फील्डिंग थोड़ी सी कभी कभी ओवर थ्रोज में खराब रहती है, क्योंकि कल जो मैच देख रहे थे होकर सर में, वहाँ पर जो जहांगीर वॉरियर्स है उन्होंने 8 बाउंड्रीज छोड़ी है। तो अगर आपको मैचेस जीतने हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग आपको करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुजीब जो है वो भी बहुत ही टैलेंटेड है। अभी जहांगीर उनका आना बाकी है। जस्ट क्लियरिंग आवर इंग्लिश क्लासेस व्हेन यू आर कमेंटेटिंग इन इंग्लिश। लोन शायद कोई बात नहीं, बहुत अच्छी गेंद और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर गेंद डाली थी और किसी भी बहुत ज़बरदस्त गेंद डाली थी और इस तरह से और एक विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। तो 3 विकेट अब तक गिर चुके हैं और जो स्कोर अभी तक बनाया है वो है 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, और 7वां ओवर इस वक्त इनिंग्स का चल रहा है। पहले आउट हुए थे इश्तियाक और
फिर लारा का जो है उसको भी वापस भेज दिया गया। अब जहांगीर लोन जो है वो आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जहांगीर लोन जो कि वादी के बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता पिच की तरफ आ रही है। और जहांगीर लोन जो है उनका नाम बहुत ही बड़ा है पूरी वादी कश्मीर में, बहुत बड़े ऑलराउंडर है। लेकिन मैं हमेशा से मानता हूँ कि जहांगीर लोन जो है वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। और इस टूर्नामेंट में 2012 में जहांगीर लोन ने पहली सेंचुरी बनाई थी। अगर बैटिंग की बात करेंगे, अभी तक इश्तियाक रसूल जो है वो आउट हुए, उन्होंने 17 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया, एक छक्का, 141 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। उमर विकेट कीपर बल्लेबाज उन्होंने 26 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया। इरफान लारा 9 रन बनाकर आउट हुए, 7 गेंदों का सामना किया। मुजीबुल हक जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं, इस वक्त नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे है, बहुत बड़े खिलाड़ी है और उनका साथ अब देने के लिए आया है जहांगीर लोन। दोनों बल्लेबाज जो है बहुत बड़े हैं। मुजीब काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड कल उन्हें होकर T20 टूर्नामेंट में जीता है। नासिर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्हें एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट वहाँ पर खिलाया है। और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है उस टूर्नामेंट में। जहांगीर लोन इज गोइंग टू फेस द वेरी फर्स्ट बॉल, शॉर्ट रेंज लेंथ, Jahangir just guided the ball towards the third man here, and there was a protection in the deep. One more to the addition now. Whenever Jahangir Loon comes to the bat and Mujib, I think the number of viewers is galloping up, and Jahangir, absolutely we welcome you here, and he has opened his account and the score goes up to now 6-3. We are in 67 rather, and we are in over number. Once again a short in length, the ball has been played towards the mid on, fielder comes in, returns ball back to the bowler until batsmen have all the time between the wickets. They got to get one more to the addition now. It's score now 168 now for the loss of 3 wickets, and over number 7th is in progress. Oh, it has taken an edge and held the edge, but that was a deliberate attempt by Jahangir Loan. Sends the ball, first boundary comes from the bat of Jahangir Loan. This is a ground, whenever Jahangir Loan comes in this ground, there comes huge number of cricketers, fans, everyone is joining the party then. Jahangir Loan started the party and he has faced 2 balls and he has scored 5 runs. Comes short in line, pulled away. There is protection in the deep until the ball will be received by the wicket keeper. There is all the time between the wickets for both the batsmen Mujib and Jahangir Loan. One more to the addition. 7 over is gone. It is 73 for the loss of 3 wickets. Talking about the Shaukat Blues Bijbehara, they have scored 182 runs. They have given 183 rather. They have given 184 target to the opponents, and their top scorer was actually Shakil, who scored a brisk knock of 49 runs. It looks like overcast conditions here. The weatherman has predicted weather this evening, and we are expecting a good game of cricket here. Hope it will not be hampered by rain today, but it looks like thundering now, a bit lightning as well, but some drops of the rain just comes here, and it looks like it would be rain as well. I hope it won't be a drizzle now, and because Jahangir Loan has come here. Jahangir Loan is a kind of a batsman. He will definitely generate an excitement in the ground. And don't waste much of a time here. May I have Abdur Rakib here, please? Abdur Rakib, 1 minute. Talking about the Duckworth-Lewis method, as we have already given all the chats about this cricket rules, and that was a slower one and plays beautifully, but in the follow through, good fielding by the bowler, and there is no addition to the total. It is 73 for the loss of 3 wickets. Over number 8 is in progress. And DL method will be applied here as per the international 2020. This is second time I think in this edition and in the boom boom edition, the ball has struck on the finger of thumbs, I guess, of Jahangir Loan, and he is feeling a lot of a pain, and it was an uncertain bounce there. Jahangir was not expecting that the ball will stick it up, and it kicked it up a bit laterly, and the ball struck on his thumb. And one more ball that has been, there's a chance of a run out there. Not a good communication between the two batsmen there. I think good call was by Mujib actually, otherwise there would have been a disaster. 73 on the board. It's a drizzle here, not a good news for the fans of cricket. Hilalul Islam, thank you. Hazil Adil, thank you so much. And it is completely overcast now here. The people are going to take their shades now, and this time Jahangir nudges the ball towards the mid on. Fielder comes, one more to the addition now. Score goes up to now 74
for the loss of 3 wickets. Over number 8 is in progress. And talking about Jahangir Loon, he has not out on 7. He has faced 7 balls, 1 boundary at the strike rate of 100. Mujib, a very versatile best in the business, nudges the ball down to the mid wicket, and the fielder can't stop Mujib in taking a run here. One more to the addition now. Score goes up to now 75 for the loss of 3 wickets. Last ball to go in the over number 8. जो बात अगर करेंगे डकवर्थ लुईस मेथड की, तो बॉल टू बॉल जो डकवर्थ लुईस मेथड का जो एक इंटरनेशनल रूल है वो फॉलो किया जाएगा, लेकिन बारिश जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पर एसएनडब्ल्यू मेमोरियल ग्राउंड में। आप भी बताएं कि अपने इलाके में क्या हाल है इस वक्त बारिश के बारे में, कमेंट्स में लिखिए। और डीएल मेथड से आप अगर आपको पता चलेगा तो आप क्रिक हीरो चेक कीजिए, वहाँ पर आप 17th एसएनडब्ल्यू चेक करो और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है कि बारिश हो रही है, अभी तक जो है मैच को नहीं रोका गया है और हम उम्मीद करेंगे कि जो मैच है वो नहीं रोका जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जो पक्ष काफ़ी मजबूत बनाई हुई है यहाँ पर फ्रेंड्स मोटर्स नारबल ने। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का स्कोर पहुंच चुका है 75 रन और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 8 ओवर के इख्तिताम के बाद। और उनकी जो करंट रन रेट है वो 9.38 और उनकी जो आस्किंग रन रेट है, तो एक बार फिर चले अंपायर को क्रॉस का शॉर्ट बॉल। मुनीब ने इसको सही तरीके से टाइम नहीं किया। मुनीब की बात मैं करूंगा कि मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग उनके साथ जो है जहांगीर उनकी बहुत अच्छी है और रनिंग बिटवीन द विकेट जो है मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू रहता है कभी कभी, और जब आपके पास तालमेल अच्छा नहीं हो तो कभी भी खतरा हो सकता है। बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर शॉट खेल दिया, हालांकि थर्ड मैन आए थे वहां पर, उन्होंने गेंद को संभाल लिया, वापस भेज दिया यहाँ पर गेंद को। तब तक मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 76। जहांगीर अब अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर। अरे यहाँ भी बारिश हो चुकी है शुरू, तो जहां जहां बारिश शुरू हो चुकी है आप कमेंट्स में लिख सकते हो और वहां से गेंदबाज आए। गेंदबाज वहां पर गेंद डाली और यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, डायरेक्ट हिट लगा था, बहुत जबरदस्त यहाँ पर हिट सोहेल की जानिब, कमाल का थ्रो किया था और बाल बच गए वहां पर मुजीब। अगर 8 ओवर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स मोटर्स नारबल को 72 रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने 8 ओवर में 75 रन बनाए हैं। बहरहाल डकवर्थ लुईस मेथड जो है वो अप्लाई किया जाएगा। अच्छी गेंद डाली थी ऑन द पैड्स, लेकिन इसको धकेल दिया ऑन साइड में, फील्डर आए वहां पर लॉन्ग ऑन से, लेकिन जब तक उनका थ्रो वापस आए तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय था रन के लिए। 1 और रन, इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 और 8.3 ओवर में 79 रन बनाए, जबकि जो शौकत बलूज बिजबियाड़ा थे उन्होंने 9 ओवर में 79 रन बनाए थे। तो डकवर्थ लुईस के हिसाब से अभी तक जो है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल अहेड। तो इस तरह से बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव खेला, सिर्फ गेंद को वहां पर बल्ले का मिडिल दिखाया, अच्छे तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर 80, 3 विकेटों के नुकसान पे। जहांगीर लोन बहुत बड़े खिलाड़ी है, अच्छी तरीके से गेंद को खेल रहे हैं। पलालन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग देख रहे हैं। सईद शाहनवाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टंगमर्ग में इस वक्त बारिश हो रही है, मुंबई में भी बारिश हो रही है, रूप मलिक कह रही है, तो यहाँ पर चंद्रहामा एसएनडब्ल्यू मेमोरियल ग्राउंड में भी बारिश हो रही है। तो इस वक्त जो बारिश का समा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन कश्मीर में पिछले जुलाई का जो मंथ है कुछ दिनों से बारिश हो रही है। हालांकि ऐसा बताया गया है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि काफ़ी ज़ोरदार बारिश होगी। जम्मू में प्रेडिक्शन जो अलार्म दिया गया है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, अरवानी बिजबियाड़ा में भी, बागी बिहारा में भी बारिश हो रही है, कुलगाम में भी बारिश हो रही है, ड्रिजल स्टार्स इन बिजबियाड़ा, हर जगह पे बारिश हो रही है। तो यहाँ पर अच्छी खबर क्रिकेट शायकीनों के लिए नहीं है। तो अभी तक 9 ओवर खत्म हो चुके हैं, 81 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे फ्रेंड्स मोटर्स नारबल 184 रन का पीछा करते हुए। अभी भी अंपायर्स का इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर, और अंपायर्स जो है आज के वो है महराजुद्दीन और एजाज। क्योंकि बारिश हो रही है, अभी मैच में कोई रुकावट नहीं आ रही है, दोनों कप्तानों की बातचीत हो जाएगी और मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है एक ज़बरदस्त एक्साइटमेंट था ग्राउंड में, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर जो माहौल हुआ है वो थोड़ा सा खामोश हुआ है। और पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर मेरे लिए जो छाता लाया गया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बारिश से नहीं भीग जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम छक्के और चौकों से भीग जाएंगे। आज बहुत बड़ा मैच है और डकवर्थ लुईस का मेथड जो है हम जानना चाहेंगे यहाँ पर अपने जो है डिजिटल स्कोरर, उनसे पूछेंगे हम। अभी कुछ स्लोवर डालना चाहते थे लेकिन गेंद खराब डाली थी ज़रूर,
हालांकि गेंद को भेज दिया वहां पर डी फाइन लाइन की जनाब, दूसरा रन के लिए पलटे लेकिन मना कर दिया यहाँ पर जहांगीर लोन ने। इस तरह से जहांगीर लोन, चाहूंगा मोहम्मद शफी 9 ओवर्स में इनको 79 रन बनाने थे एज पर डीएल मेथड, तो इन्होंने बनाए हैं 81 रन। तो अगर डीएल मेथड की बात करेंगे तो फ्रंट्स मोटर्स को 79 रन बनाने थे लेकिन उन्होंने 81 रन बनाए हैं, तो 2 रन आगे या डीएल मेथड की से। हाँ बताइए प्लीज जी। 79 रन बनाने थे इनको, क्योंकि इनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो इन्होंने 81 रन बनाए हैं अभी तक। तो एक बड़ा मैच चल रहा है, तो मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त रकीब। तो रकीब, आपको लग रहा है कि एक जबरदस्त मैच जो है, तो रकीब आपको लग रहा है बहुत बड़ा मैच है, शौकत बिजबियाड़ा की बहुत बड़ी टीम है, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा शॉट खेला स्वीपर का और मैं फील्डर वहां पर तैनात और मुजीब के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत शॉट और एक और रन जुड़ा स्कोर बोर्ड में। यहाँ पर स्कोर की बात अगर करेंगे तो स्कोर पहुंचता हुआ 84, 3 विकेटों के नुकसान पे 10वां ओवर इस वक्त चल रहा है। तो बाकी अगर बात हम करेंगे, मुझे लगता है कि अब 100 रन बाकी रह चुके हैं यहाँ पर इस जीत को हासिल करने में। फ्रंट्स मोटर्स नारबल 184 रन का लक्ष्य दिया गया उनको यहाँ पर आज SNW मेमोरियल ग्राउंड में। एक बार फिर चले जहांगीर लोन वहाँ पर बट के लाइन से और बल्ला कहीं और गेंद वहाँ पर बहुत अच्छी डाली थी, जहांगीर लोन को बीट कर दिया, तो वहाँ पर किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। 84, 3 विकेटों के नुकसान पे और इनको बनाने हैं 87 रन बनाने हैं 10 ओवर्स में। डीएल मेथड के हिसाब से 87 रन बनाने हैं यहाँ पर जो है फ्रंट्स मोटर्स नारबल। आगे आए, इसको उठा दिया, यहाँ पर गेंद चलेगी बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, 2 फील्डर चल रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जो ही जहांगीर को इस चीज का पता चला कि उनको 87 रन बनाने हैं 10 ओवर में, तो उन्होंने चौका जार दिया यहाँ पर, तो स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन। अभी भी एक गेंद बाकी इस ओवर में। जहांगीर लोन की बात करेंगे, 12 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाए, 2 चौके और अभी तक कोई उनका छक्का नहीं लग गया। 108.30 की औसत से रन बना रहे हैं, ये उनका स्ट्राइक रेट है। एक बार फिर उठा दिया, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, क्या वो लेने में कामयाब होंगे? बहुत जबरदस्त कैच, जहांगीर लोन की इनिंग्स का खात्मा कर दिया इस तरह से। तो बात जरूर करेंगे यहाँ पर हम अपने क्रिक हीरो स्कोरर से। प्लीज बताइए क्या हाल है इस वक्त? चूंकि इनके अभी तक 3 खिलाड़ी आउट थे, तो इनको 87 रन बनाने थे 10 ओवर्स में, और अब इनका टारगेट बन गया है 92 रन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ओवर्स। यानी कि इनका जो 1 विकेट और गिरा है जहांगीर लोन की सूरत में, तो अब इनको 92 रन बनाने हैं, 92 रन। तो मुझे लगता है कि अब हम 11वें ओवर की बात करेंगे, अभी एक ओवर बाकी होने को जा रहा है रकीब। तो 11 ओवर की बात अगर करेंगे तो कितने रन बनाने होंगे यहाँ पर फ्रंट्स मोटर्स नारबल को? एक्चुअली यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अंपायर क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अभी उतनी ड्रिजल नहीं हो रही है, तो मेरे ख्याल से अभी 1-2 ओवर हो जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि अभी अगर हम देखेंगे 11 ओवर्स में इनको यहाँ पर जो है कुछ खलबली मची है जरूर वहां पर, तो रकीब देखना पड़ेगा वहां पर क्या हुआ। मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला देना पड़ेगा। जहूर जोलो आए हैं, टाइम का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरे हाथ में गड्डी लगाई हुई है इस वक्त, 6:05 मेरे गड्डी पे लगे हुई है, तो लेकिन रकीब का मोबाइल दिखा रहा है कि 6:10 हुई है। तो मुझे लगता है एक स्पोर्ट्समैनशिप भी कभी कभी दिखानी चाहिए, कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे आज के मैच रेफरी है, तो अब देखना पड़ेगा आज के मैच रेफरी जो है मैच रेफरी नॉट आउट सिग्नल आया, मैच रेफरी ने यहाँ पर टाइम आउट किया था, तो लेकिन बॉल बच गए। जहूर जोलो आया बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पर 393 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, मैच देख रहे हैं और ये आपको लाइव दिखा रहे हैं हम चंद्रमा के SNW मेमोरियल ग्राउंड से। दोनों बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पे मौजूद। जहांगीर लोन की इनिंग्स का खात्मा हुआ। जहांगीर लोन ने 13 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाए, 2 चौकों की मदद से, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 रहा। और जहांगीर लोन की अगर बात करेंगे तो बूम में भी उसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। हालांकि बहुत बड़े खिलाड़ी जरूर है, लेकिन जिस खेल के लिए जहांगीर लोन जाने जाते हैं उस खेल का मुजाहरा उन्होंने इस साल अभी नहीं किया है इस एडिशन में। तो बहरहाल एक बार फिर चले यहाँ पर गेंदबाज। तो ये जो अपील चल रही थी यहाँ पर, ये टाइम आउट के लिए था जो बल्लेबाज को होता है, तो उस लिहाज से जो अंपायर से, और बहुत ही खतरनाक हो सकता है और आउट। बहुत जबरदस्त फील्डिंग,
यहाँ पर जबरदस्त ड्रामा होता हुआ, जिस खिलाड़ी के लिए अपील की गई थी वो खिलाड़ी आउट। जूर जोलो को शॉर्ट पिच गेंद डाली जरूर गई थी, तो वहां पर आउट हुई है जहूर जोलो। तो रकीब बताए पुलिस दर्शकों को यहाँ पर जो माहौल बना हुआ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस शौकत ब्लूज बिजबिहाड़ा, तो कितने रन बनाने होंगे? अगला विकेट खो दिया है यहाँ पर जी, इन्होंने अब 5वां विकेट खोया है, तो इस हिसाब से इनको अब 105 रन बनाने हैं 11 ओवर में। हाँ बिल्कुल, 11 ओवर में इनको 105 रन बनाने हैं। हेलो हेलो तमस मैंने करो योर फोन है। हाँ ठीक है ये मोबाइल है सर। था जल्दी क्रिक हो गया था। अगर डीएल मेथड की बात करेंगे तो अब जो दबाव है वो फ्रेंड्स मोटर्स नारबल में बढ़ता हुआ 11 ओवर में 105 रन बनाने हैं। स्कोर हुआ है इस वक्त 88। अर्शीद है शायद, अर्शीद क्या है स्कोर? स्कोर क्या को स्कोर? अच्छी गेंद डाली थी वहां पर, बहुत अच्छी गेंद डाली। और छोटा युवा खिलाड़ी 17 साल के, उनको चाहिए कि उनको हेलमेट पहननी चाहिए। साकिब भाई है अगले बल्लेबाज, प्लीज यहाँ पर क्रिक हीरोज निकाले रकीब। और मुझे लगता है हवा आ रही है, आप भी बताइए आपके जो इलाके है क्या माहौल चल रहा है वहाँ पर बारिश का? यहाँ पर जो बारिश है वो रुक गई है, अच्छी खबर आ रही है यहाँ पर। और मैच चल रहा है दोनों टीमों के माबीन, फ्रेंड्स मोटर्स नारबल और शौकत ब्लूज बिजबिहाड़ा। और बहुत बड़ा शॉट खेला, कैच भी हो सकता है, छक्का भी लग सकता है, आउट होने का खतरा और आउट। हालात बिगड़ती हुई यहाँ पर फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की। 88 पे आप 5वां विकेट आउट, छठा विकेट आउट। क्या कमबैक किया शौकत ब्लूज बिजबिहाड़ा ने यहाँ पर? इनका टारगेट भी बढ़ता जा रहा है, अब इनका टारगेट है 114। अगर बात करेंगे तो इनको बनाने थे 105, चूंकि एक और विकेट खोया है तो अब इनको बनाने होंगे 114 रन। सो इन टर्म्स ऑफ द डकवर्थ लीव्स मेथड हियर, द प्रेशर इज माउंटिंग अपॉन द जहांगीर लूना एंड हिज कंपनी, दैट इज फ्रेंड्स मोटर्स नारबल। They have lost another wicket here, 6th wicket down. The drizzle has stopped finally here. It looks a quite beautiful breeze here. Mujib is still there. The extra responsibility on the shoulders of Mujib here. He has to be highly sensible here because the situation is worsening here. The middle order is absolutely collapsing, and 6 wickets are back to the dugout here. Jahangir Loon is back to the dugout. Ishtiaq Nag is back to the dugout, and Lara is already back to the pavilion as well. So the pressure is directly coming upon the team of Friends Motors Narbal. It is FM versus Shaukat Blues Bijbihaड़ा here, and Shaukat Blues Bijbihaड़ा are in dominance of the game here. They are in a complete possession in the ascendancy of the second innings. They have come back very strongly, and a good captainship and a good leadership by the captain in middle of the ground by utilizing all the bowlers. Comes and nudges the ball down the leg side. It's a big fumble. Oh, that should be a run out. Oh God, that's a big run out. Oh, that is terrible. There was a misunderstanding between the new batsman and Mujib. The pressure is now directly mounting up on the Friends Motors Narbal. तो बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है इस वक्त डकवर्थ लीव्स हिसाब के, क्योंकि एक और विकेट गिरा है, 7वां विकेट गिरा है। प्लीज बताइए। There is no Adil Rashid, no Javed Judoo. Javed Judoo is a kind of an all-rounder in the team. He's a good finisher. He's not there. तो टीम बदली हुई है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की। तो रकीब मुझे लगता है कि हालात काफी खराब इस वक्त फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की। बहुत मुश्किल है अब, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, इनको 11 ओवर्स में 10 ओवर्स में 88 रन बनाने थे, लेकिन अब इनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अब इनको 128 का टारगेट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11 ओवर्स।
तो डीएल मेथड यहाँ पर फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की जो टीम है उनके कप्तान रफी आई है आहिस्ता आहिस्ता और बहुत परेशान कदमों के साथ इस वक्त आ रहे हैं। उनका सामना यहाँ पर करेंगे मुजीब जो है। मुजीब एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास कला है, क्षमता है, लंबी लंबी इनिंग्स की खेलने की उनके पास काफ़ी क्षमता है। अब देखना पड़ेगा मुजीब जो है वो किस तरह इस इनिंग्स को आगे ले जाएंगे। अगर डीएल मेथड की बात करेंगे तो 6 ओवर में, 7 ओवर में, 8 ओवर में, 9 ओवर में, 10 ओवर तक जो फ्रेंड्स मोटर्स है उनका पक्ष गेम में था, उनका पक्ष जो है वो मैच में था। ऐसा लग रहा था कि वो मैच जीत लेंगे, लेकिन डीएल मेथड के हिसाब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इस वक्त डीएल मेथड की बात करेंगे, अच्छी गेंद डाली थी, शॉर्ट राइजिंग गेंद वहां पर बहुत अच्छी दिशा से वहां से बिल्कुल चकना चूर कर दिया, चारों चिद कर दिया वहां पर बल्लेबाज के। तो विकेटों के पीछे अच्छी यहाँ पर विकेट कीपिंग खालिद की तरफ से किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर यहाँ पर 88, 7 विकेट आउट 11 ओवर के इख्तिताम के बाद। तो रकीब, तो मुझे लगता है कि जो 11वां ओवर है, 11वें ओवर में यहाँ पर जो है शौकत बलूज जो यहाँ पर है बिजबिहारा की काफी कमबैक किया है। तो क्या लग रहा है डीएल मेथड के हिसाब से? मुझे लगता है जबरदस्त कमबैक। बिल्कुल जी, जो इन्होंने इस टाइम स्पिनर का यूज़ किया तो मेरे ख्याल से वही टर्निंग पॉइंट था। उसी में इन्होंने 2-4 विकेटें गंवाई और रन आउट भी एक हुआ। तो उस टाइम तक मेरे ख्याल से जब तक जहांगीर क्रीज पे थे तो उस टाइम तक ये तो मैच मेरे ख्याल से फ्रेंड्स मोटर्स का था, क्योंकि वो आगे चल रहे थे। और उसके बाद जब जोलो आउट हुए तो उसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया और इनका टारगेट बहुत बढ़ गया है डीएल मेथड के हिसाब से। 128 रन बनाने थे इनको 11 ओवर्स में, जबकि ये 88 पे ही रुके हैं। इस गेंद को उठा दे, इनसाइड आउट, आउट होगा, खत्म, आउट। कप्तान रफीक की पारी का कर दिया खात्मा यहाँ पर। इस तरह से फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की रकीब जो टीम है उनके जो बल्लेबाज है ताश के पत्तों की तरह आज बिखर गई। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एक्चुअली मेरे ख्याल से जल्दबाजी की। जो ये देख रहे थे कि डीएल मेथड के हिसाब से चल रहे थे तो वहीं पे इन्होंने जल्दबाजी की। अदरवाइज वहाँ तक ये आगे थे 5, 6 ओवर, 7 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर तक ये आगे थे इनसे। तो उसके बाद ही जो जहांगीर की विकेट गिरी तो उसके बाद इनकी लाइन लगी। इसीलिए हम रकीब कहते हैं क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन ऑन द वेरी नेक्स्ट बॉल। अंटिल द 10th over there was absolute dominance of the France Motors Narbal over this match. The game was in their pocket as per the DL method, but once the 11th over started, things gonna turn and the cards were turned here. Once the wicket is fall like pack of cards from the France Motors Narbal, the situation is worsening now. I think it is the stars and the beautiful guys from the Shaukat Blues. Bijbara, they came back very strongly after getting the wickets of Ishtiaq Rasool, especially the wicket of Jahangir Lun in middle of the game. Then Zuhur Zulu on the very next ball, and then a run out. I think this was absolutely a big collapse. Once again, a good delivery, a pitching right outside the off stump, and on the perfect deck there, well taken behind the wickets, and there is no addition to the total. And for last 2 years, Raqib's score is staying on 88, and there is no addition to the total. I think there is a complete possession of the Shaukat Blues on this match now, as per DL method. Once again, goes for a straight drive, plays beautifully, finds the fielder. Protection was in the deep until the ball will be returned back to the bowler. There was an ample time for the bowlers and in fact for the batsman to go for another single here. So now there is a lot of excitement in the hurdle of all these guys from the Shaukat Blues Bijbihara. They played well, they played sensible cricket today, getting run outs and getting some quick runs at the end of the first innings, and they absolutely deserve an applaud. Once again, back of a long delivery, plays towards the bowler side. It was a catch call, cotton ball call there, but it has missed it. He has touched the land there, and it was a drop call there. No damage done. Score stays on 89 for the loss of 8 wickets. Oh, that's a beauty. That's a wonderful delivery here. Well taken behind the wickets. And I think the big problem has been the 2 wickets that fall in a quick succession. That was Jahangir Lun and Zuhur Zolo. I think from that now the situation has gone worst for France Motors Narbal. Raqib. बिल्कुल, जब से जहांगीर का विकेट गिरा है तब से 1 रन का इजाफा हुआ है. Oh, this time nudges the ball beautifully in a style towards the man at the
Short mid wicket, batsmen have all the time to go for a single. Now it is completely drizzle here. Not a good news for the fans. This is a match from SNW Memorial Ground, the tournament which actually started in 2004 when Nesbel became the first champions, and the most champions of this tournament are Palalan Stars, who have won the tournament 5 times. They have entered the final 7 times, and Shaheen Support Chandrama, they have won the tournament once in 2008, and I think Yadipura has Rakib won once. PCC Tarzu has they have won the tournament once. I think DC 11 Baramulla, they have won it once, and Baspura Srinagar, you were playing with them, Rakib. 0-1 0-1 And आपको यहाँ पे बताता चलूँ please tell about the DL method now situation. जी 12 ओवर में इनको बनाने थे 148 रन, 8 विकेट इनके गिर चुके हैं, तो इनका टारगेट बनता है 148 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 ओवर्स, जबकि इनका स्कोर इस वक्त है 90 पे रुका हुआ है, तो उस हिसाब से बहुत पीछे हैं. Also, it's a bad news for the fans of the France Motors Narbal here. So while talking about last year, the champions became FCC Baspura or Ahmed Warriors Baspura, Adil Polar became the champion of 2019 and 20 trophy. So because of the pandemic situation, 2020, 2021, the tournaments were actually delayed. A fumble there, a bit of a fumble, and but Mujib has made the line. No damage done. Score has gone up to now 91 for the loss of 8 wickets. Can you believe the team who are having a good, dominance over this match are looking in absolute collapse now. Mujib will be facing the first spinner in the second innings. Smashes the ball, slam is over the man at the mid-on, but there was a protection. Long off, wideish long off comes in to rescue the ball, sends back to the bowler. There was a lot of time for the batsman to go for another run here. It is now 92 for the loss of 8 wickets, and we are in over number, Rakib, I guess it's 13th over in progress. Yes. Can you believe Jahangir on back to the pavilion, Ishtiaq Rasool is back to pavilion, Zuhur Zolo is back to pavilion, and Spinner has been brought into the attack, comes in, he will be bowling to her, and this time sends the ball in a style, that's all the way, and it's a 6. Magnificent, and slams the ball over the long on fielder for a 6. Umpire Ajaz has no issues in signalling it a 6. So the score is now mounting up to now 96 for the loss of 97 for the loss of 8 wickets. So सारे दर्शकों से once again a short pitch delivery that has been nudged down to the man at short mid wicket, comes in, sends ball back to the bowler, and there was all the time between the wickets to have a one more to the addition. Now score goes up to 98 for the loss of 8 wickets. We are in over number 13. Akif Pare is having 2 balls in this over. Oh, that's a good ball. That's a terrific ball. Went across the line. That's a beauty. This was Dudley Plum. Good decision taken by Ajaz there in middle of the game. This was almost a Yorker delivery. Bamboozled the batsman there. Mujib was an anchor. Mujib was a top caliber batsman. He is the man who was declared man of the tournament in Hokersar T20 Championship Trophy, and he has been sent back to the dugout now. So the situation is here now. Rakib, it is 9th wicket down, 98 on board, and 30th over in progress. It is completely drizzle here, and Rakib, if we were talking about the DL method in terms of that, France Motors Narbal are way back to win the match. जी बहुत पीछे चल रहा है इस वक्त. इनको 9 विकेट के नुकसान पे इनको 168 is the new target. It is completely drizzle here, and we are in the middle of the center here. और दर्शकों को बताना चाहूंगा जो हमारा कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच है, सारे मैच यहाँ पर SNW से लाइव हम देने की कोशिश करेंगे जब भी हमें छुट्टियां मिलेगी. तो इंशाल्लाह जो है पेंडेमिक सिचुएशन है, आप भी थोड़ा सा अभी ख्याल रखें कि अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है. लेकिन साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपका सपोर्ट जरूर मिलेगा तो कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच जो है एक प्योर जर्नलिज्म जो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस चीज़ की तारीफ हमें करनी चाहिए. और ये एक ऐसा पेज है जिसके
मुझे लगता है कि 63,000 फॉलोवर्स हैं, तो वो अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस पेज को, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच को। और जो चंद्रमा का ये 18वां साल टूर्नामेंट का चल रहा है, जो 2004 में एक्चुअली शुरू हुआ था, तब से ये लगातार टूर्नामेंट चल रहा है। तो अगर बात करेंगे बॉलर्स की आज, तो इम्तियाज़ ने इनिंग्स की आगाज़ की है। बॉलिंग की बात अगर करेंगे, 3 ओवर कोई मिड नहीं, 38 रन 1 विकेट। यूनुस भट्ट 2 ओवर कोई मिड नहीं, 20 रन और कोई विकेट नहीं। आमिद बेंजी ने 4 ओवर किए, 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। नईम डार ने 3 ओवर किए, 11 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। आकिब परे ने 1 ओवर किया, 9 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। आज के जो किफायती गेंदबाज दूसरे इनिंग्स में रहे हैं यहाँ पर शौकत ब्लूज बिजबिहाड़ा की तरफ से, वो है नईम डार। नईम डार ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। तो मुझे लगता है कि नईम का ये चौथा ओवर शुरू हो चुका है और यहाँ पर नए बल्लेबाज इस वक्त दोनों क्रीज पे, एक है क्यूम तो दूसरे है उनका जो साथ दे रहा है ज़ुहूर सूफी, जो कि इस वक्त क्रीज पे मौजूद सामना कर रही है। वहां पर गेंदबाज का इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया कलारी के सहारे, और वहां पर मौजूद है खिलाड़ी, उन्होंने वहां पर फील्ड किया। किसी भी रन का 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन लेने से स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 101, 9 विकेटों के नुकसान पे। काफी खराब परफॉर्मेंस दी है आज यहाँ पर फ्रेंड्स मोटर्स नारबल ने। कुयूम सामना करेंगे, इस गेंद को उठाना चाहते थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन वहां पर जो गेंद की लाइन है वहां तक नहीं आ पहुंचे और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। द ब्रीज हेल्प द बॉलर्स, बिल्कुल शाहनवाज ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर छोड़ी है। जो कि ब्रीज होती है, जो कि हवा होती है, गेंदबाज को गेंद स्विंग करने में बिल्कुल मदद कर लेती है और बहुत अच्छी गेंद डाली थी और बहुत ज़बरदस्त गेंद, बहुत अच्छा कमबैक यहाँ पर किया है। नईम की अगर बात करेंगे तो सबसे किफ़ायती गेंदबाज रहे हैं यहाँ पर शौकत ब्लूज की तरफ से और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने की है। नईम ने 3.4 ओवर किए, 12 रन दिए, 2 विकेट लिए और 3.27 की औसत से रन उन्होंने दिए है। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग, स्लोवर गेंद डाली थी वहां पर बैक ऑफ लेंथ और वाइड का इशारा मिला। तो इस वाइड के साथ यहाँ पर फ्रेंड्स मोटर्स के स्कोर में इजाफा, उनका स्कोर 102, 9 विकेटों के नुकसान पे। कुयूम जो कि टीम के मालिक भी है और इस वक्त सामना कर रही है गेंदबाज नईम का। एज लगा और बहुत जबरदस्त कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच यहाँ पर आप देखिए और कमाल का कैच लिया। इस तरह से फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का जो सफर है SNW क्रिकेट 2020 टूर्नामेंट में वो खत्म हो चुका है। तो इस तरह से बहुत जबरदस्त गेंदबाजी जो है वो की है यहाँ पर शौकत ब्लूज ने। तो शौकत ब्लूज की पूरी टीम है वो कैमरा के सामने आए मेहरबानी करके। शौकत ब्लूज के जो कप्तान है उनसे भी बात होगी। शौकत ब्लूज कैप्टन प्लीज, और नईम कैप्टन है नईम, बॉलर इज अ बॉलर। So news here from the middle of the ground is at the end of the second inning is here. The match was not stopped in fact here, and this is Shafi Para here live coming from SNW Memorial Ground. It's completely drizzle, it's overcast in the valley, and we are enjoying cricket. And it has been a bad show from Friends Motors Narbal. This is the team in a hurdle. They are enjoying it because they have knocked out in the competition. A wonderful and one of the best teams who have won recently the Boom Boom Cup, and they have been knocked out. And this is a team which was composed of Jahangir Lone, Zuhur Zolo, Akib Nabi was not playing, Adil Rishi was not playing, Javed Jaddu was not here, Wasim Kashu was not here. There was none of the batsmen who could have rescued. Captain, may I have few words with captain please? वहाँ बात हो जाएगी please. तो इस तरह से ये रकीब शायद मुझे लगता है कि 80 रन से ये मैच उन्होंने जीत लिया है। तो वी विल गो फॉर द प्रेजेंटेशन सेरेमनी एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू ऑल द स्पॉन्सर्स की बात करेंगे यहाँ पर। द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द टूर्नामेंट इज सहारा डायग्नोस्टिक सेंटर। I will be talking about the Sahara Diagnostic Center. They will start endoscopy, very soon now. कल मेरी माशुक भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम जो है एंडोस्कोपी भी स्टार्ट करें सहारा हॉस्पिटल में। तो सहारा हॉस्पिटल एक टाइटल स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के। अहमद सपोर्ट्स बायो केयर लैब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफी जबरदस्त सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के विजेता के लिए।
May I have few lines with the captain, please? कप्तान से बात होगी. खालिद 183 का लक्ष्य जो ओपोनेंट्स को आपने यहाँ पर दिया है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और एसएनडब्ल्यू मुझे लगता है कि जो शौकत ब्लूज बिजबिहाड़ा है, आई थिंक यू आर एंटरिंग फर्स्ट टाइम. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. ये पहले हमने टारगेट बहुत अच्छा दिया था. अब तो इश्तियाक नाग जो हमारे साथ खेलता था, हमें पता था कि हम उसका विकेट निकालते ही हम मैच में फिर से वापस आएंगे और हम यहाँ पे पहली बार आए. ये हमारा नया टीम है, इसका ओनर, हमें उसके लिए हम उसको थैंक करते हैं. वो देखता होगा, हम उसके लिए थैंक करते हैं. थैंक्स टू इरशाद. अच्छा, कैसा माहौल चल रहा था? डीएल मेथड भी आप 10 ओवर तक आप डीएल मेथड में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन 11 ओवर जो ही स्टार्ट हुआ, जहांगीर उनका विकेट, जूहर जोलो का विकेट और रन आउट वहां पर, तो उससे जो रन रेट है ज्यादा बढ़ गई. डीएल मेथड से भी आप जीत रहे थे, लेकिन आपने कोलैप्स कर दिया वहां पर मिडिल ऑर्डर को. हाँ बिल्कुल. आई विल थैंक टू आमिर एंड नईम हु बोल्ड वेरी वेल हियर. उन्होंने बहुत अच्छा बॉल किया, तो हम उस वजह से गेम में आ गए और डीएल मेथड भी उस टाइम भी हम उधर भी जीत सकते थे. यहाँ पर जो एसएनडब्ल्यू का